Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Today we will start chapter number 12, Electricity and Circuits. Electricity means flow of electric current is called electricity. Electricity is a useful form of energy which we use to make our work easier. It plays important role our daily life. For example, working of television, fans, washing machines, ये सब कैसे वर्क करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के कारण. Now, in this chapter, we will learn about sources of electricity, electric cell, electric bulb, electric torch, electric circuits, and conductors and insulators. Let's start. Given below are the pictures of a few items that work on electricity. Sort these items into following two categories. First, items that get their electric supply from mains. Number 2, items that get electrical energy from cells or batteries. Write M for category 1 and B for category 2. Let's see in the picture. आपको पिक्चर्स दी गई हैं, तो जो कैटेगरी 1 में आते हैं उनके लिए M लिखना है क्योंकि वो मेंस से इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, और जो कैटेगरी 2 में आते हैं उनके लिए B लिखना है जो सेल और बैटरी से चलते हैं. हेडफोन्स B, रेफ्रिजरेटर M, फैन M, मोबाइल B, टॉर्च B. मीन्स जो हेडफोन है, मोबाइल है, टॉर्च है, ये सब बैटरी या सेल से चलते हैं, और जो फ़ैन है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब मेन सप्लाई से पास होते हैं, करंट पास होती है, इसलिए इनके लिए M लिखना है और इनके लिए B लिखना है. Electricity has become an integral part of our lives. Most of the everyday appliances that we use at home run on electricity. Imagine a hot summer day when you are sitting in your room under the fan or the AC and suddenly there is a power cut. This thought itself makes us realize the importance of electricity. In this chapter, you will learn more about electricity, its sources and substance that allow electricity to pass through them. हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हम हर रोज़ अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. इमेजिन करो जब गर्मी के दिन होते हैं और आप फ़ैन के नीचे या एसी के नीचे बैठे रहते हो और अचानक से पावर कट हो जाती है, तो हमको रियलाइज़ होता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है. तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके सोर्सेज, उसके सब्सटेंस कौन कौन से हैं, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो देखेंगे. सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. The electrical energy or electricity is obtained from various sources such burning of coal, running water, wind and chemical reaction in nucleus of radioactive elements. You will study about these sources of electricity in detail in higher classes. The electricity generated in these power stations is transmitted through cables and transported to our homes, offices and other places. Electricity can also be generated using generator and other sources such as electric cell. इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल,
वाटर, विंड और केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और हायर क्लासेस में और सोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पावर स्टेशन से, और पावर स्टेशन से केबल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है हमारे घर में, ऑफिस में और बहुत सारी प्लेसेस में। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के यूज़ से भी जनरेट होती है, और अदर सोर्सेज जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल, इससे भी हमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इलेक्ट्रिक सेल, an electric cell, or simply a cell, is a device that converts chemical energy into electrical energy. It contains certain chemicals inside it. The reactions between these chemicals give rise to an electric current. Each cell has two terminals, positive and negative. The cell is marked with the positive sign plus and negative sign minus to indicate the respective terminals. The common electric cell used in appliances such as torch and TV remote is a dry cell. A dry cell is a source of electric current. It is called dry cell because it contains dry or semi-solid ingredients. इलेक्ट्रिक सेल तो आपने देखा ही होगा। इलेक्ट्रिक सेल एक सिंपल डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर केमिकल होता है, तो केमिकल का रिएक्शन होकर फिर वो इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट होता है। हर सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने देखा होगा सेल को, तो सेल की मार्क्ड एक पॉजिटिव साइन होती है और एक नेगेटिव साइन होती है, जो इंडिकेट करते हैं टर्मिनल्स को। तो ये सेल का यूज़ हम टॉर्च में या टीवी रिमोट में करते हैं, जिसे ड्राई सेल भी कहा जाता है। तो ड्राई सेल क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का सोर्सेज है, क्योंकि उसमें जो कंटेन है वो ड्राई हैं, सेमी सॉलिड इंग्रेडिएंट्स हैं, इसलिए उसे ड्राई सेल भी कहा जाता है। A dry cell consists of a zinc container inside which there is a layer of a paste of ammonium chloride. A carbon rod covered with a metal cap is at the center of the cell. The carbon rod is surrounded by a mixture of मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर। ड्राई सेल में जिंक कंटेनर होता है और उसका जो लेयर है वो अमोनियम क्लोराइड के पेस्ट का होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। और उसके सेंटर में, सेल के सेंटर में एक कार्बन रॉड होती है जो एक मेटल कैप से कवर्ड होती है। कार्बन रॉड एक मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिक्सचर और कार्बन पाउडर से सराउंडेड होती है। द सेल इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ मेटल casing except the metal cap of the carbon rod which sticks out at one end and the base of the zinc container that remains exposed at the other end. A dry cell has two terminals, the metal cap which acts as a positive terminal and the metal base which acts as a negative terminal. When the terminals of the cell are connected to the wire, electricity is produced. सेल को एक मेटल कैसिंग से कवर्ड किया जाता है और उसके सेंटर में कार्बन रॉड होती है, ओनली जो मेटल कैप है उसको छोड़कर, और उसके जो बेस में जिंक कंटेनर होता है एंड वो एक्सपोज करती है दूसरे एंड को। और ड्राई सेल्स में टू टर्मिनल्स होते हैं, जो मेटल कैप होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है और जो बेस होता है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है। जब ये दोनों टर्मिनल एक वायर से कनेक्ट होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। These cells get
affected at higher temperature. Hence, they should be stored in shade and kept away from direct exposure to sunlight. When not in use, the cell should be removed from the device, such as torch, camera, transistor, and radio, to avoid the leakage of the cells. Different type of cells are used in different devices. The cells used in wristwatches and calculators are called button cell. They are called button cells because of their button-like shape. Cells used in TV and AC remote are usually AAA or AA type. Similarly, a mobile phone works on a different type of cell. Figure 12.4 shows different type of dry cells. ये सेल हाई टेम्परेचर में अफेक्ट करते हैं, इसे हमें डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना चाहिए, इसे स्टोर करके रखना चाहिए। और जब ये सेल का यूज़ नहीं करते हैं तो उस डिवाइस में से ये सेल को निकाल देना चाहिए, जैसे कि टॉर्च है, कैमरा है, इन सब में से, क्योंकि सेल का लीकेज ना हो। आपको फिगर में डिफरेंट टाइप के सेल बताए गए हैं जो डिफरेंट डिवाइस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे रिस्ट वॉच है, कैलकुलेटर है, इसमें बटन सेल यूज़ होते हैं क्योंकि ये बटन लाइक शेप में होते हैं इसलिए। और जो सेल टीवी के रिमोट में या एसी के रिमोट में यूज़ होते हैं उसे AAA और AA टाइप कहते हैं। और मोबाइल फ़ोन में अलग टाइप का सेल होता है जो आपको दिखाया गया है फिगर में। जैसा आप फिगर में देख सकते हो, AAA सेल थोड़ा पतला है, AA सेल थोड़ा और मोटा है, D सेल थोड़ा और मोटा है, और बटन सेल बटन जैसे हैं, और जो हम मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं वो बैटरी। इलेक्ट्रिक बल्ब। We see a variety of electric bulb in our houses, shops, mall and other public places. The basic electric bulb that is used since ages is given in figure 12.5. हमने बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब देखे होंगे अपने घरों में, शॉप में, मॉल में, डिफरेंट टाइप के बल्ब देखे होंगे, पर जो बेसिक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो 12.5 में हमें दिखाया गया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। Consists of a transparent glass covering the encloses a filament. Filament is a thin coiled wire made up of tungsten metal. Tungsten metal has a unique property of glowing when electricity passes through it. The electric energy gets converted into light energy and heat energy by the filament. The filament is connected to two thick wires. The ends of the wires are connected to the metal base of the bulb. The space between the filament and the glass covering is filled with argon gas. It is an inert gas, so it does not react easily with the tungsten metal at high temperature. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, जो बल्ब है वो उसका जो कवरिंग है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास में है, और जो उसके अंदर है एक थिन कॉइल वायर है जिसे फिलामेंट कहा जाता है, वह टंगस्टन मेटल का बना हुआ है। टंगस्टन मेटल में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में फिलामेंट के द्वारा। और जो फिलामेंट है वो कनेक्टेड है एक थिक वायर से। जो थिक वायर आप देख सकते हो, 2 वायर से कनेक्टेड है फिलामेंट। फिलामेंट एकदम थिन वायर होता है, पतला सा होता है, आपने बल्ब में देखा होगा। इसमें जो वायर का एंड है वह बल्ब के बेस से कनेक्टेड होता है, और फिलामेंट और ग्लास इसके बीच के जो स्पेस में एक गैस भरी होती है, आर्गन गैस। ये एक इनर्ट गैस है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करती है इजीली से,
टंगस्टन मेटल को हायर टेम्परेचर के साथ। When the current flows through the bulb, the filament become hot and it glows. The function of the electric bulb is to use electric energy and convert it more into light energy and little heat energy. जब बल्ब में करंट फ्लो होता है तो फिलामेंट हॉट होने लगता है और बल्ब ग्लो हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वह क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। बट ये जो बल्ब है, इसके जो फिलामेंट हैं, यह मोर एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को सेव करने के लिए आजकल एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड एंड सीएफएल मीन्स कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब का यूज़ करते हैं, क्योंकि एलईडी और सीएफएल यूज़ करने से इलेक्ट्रिक एनर्जी सेव होती है।